So hello student, let us discuss now the next chapter of ray optics, that is called refraction. अभी तक हमने बच्चे रिफ्लेक्शन किया। रिफ्लेक्शन में क्या था कि ये सरफेस था इस पे हिट करते थे तो लाइट वापस चले जाती थी। दिस इज कॉल्ड reflection. Now in this chapter refraction, the problem is now there is no polished surface. Light can enter from one medium to another. So science says when light enters from one medium to another medium, then at this point there is change in the path of the light. This phenomena of bending of light, not bending, we can change this phenomena, change in the path of light. Change in the path of light is called refraction. And what is the actual cause of refraction? So basic, it is due to the change in speed of light in different medium. Change in speed of light in different medium. So this phenomena, change in the path of light when light goes from one medium to another, is called refraction. So when we talk about medium, so we have defined two types of medium. One is a rare medium and another is a denser medium. In rare medium, we will consider only air or vacuum and accept all other mediums considered as a denser medium. So science says when light enters from rare to denser, look at this. If I suppose this side is rare, this side is denser. If light enters, then it bends towards the normal. But in the similar way, if light enters from denser to rare, then it bends away from the normal. सीधी जानी थी, bend करेगी away से. This angle is called angle of incident. This is called angle of refraction. The important thing that you have to remember, when light goes from one medium to another, there is no change in its frequency as well as energy. This is a board favorite question, that what will be change in the frequency as well as energy? The answer will be it remain same. So what will change? Wavelength will change and velocity will change. So why there is no change in the frequency? You will read, it's your assignment beta. Still you have a problem, you can ask me. So there is no change in the frequency as well as energy when light goes from one medium to another. Then the question comes, what are the laws of refraction? So when you talk about laws of refraction, then there are two laws. Number one, incident ray, refracted ray, and normal, all lies on same plane. सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं. सेकंड क्या बोला था? सेकंड उसने बोला था साइन ऑफ इंसिडेंट to the sign of refracted is always a constant quantity. Means the ratio of these two for a given pair of medium is always a constant quantity. Later on, that constant quantity was a refractive index. That constant quantity was a refractive index. So if you increase the angle of incident, angle of refraction will also increase to keep it that ratio is equal to constant, and that constant is called a refractive index. Sometimes question comes, under what conditions Snell's law fail? Under what condition Snell's law fail? So its answer is Snell's law only fail if light enters normally. In that case, if light enter normally, what will be angle I? I will be, R is also 0.
So there is no refractive index as per this. Mu should be 0, but still there is mu. It means Snell's law fail. This is the basic limitation of Snell's law. It will fail under this condition. So laws of refraction is clear. The most important is sin I by SR is a constant. So this was my first question. What is a refraction? Second question is laws of refraction. Third question, the concept that is discussed with you is a refractive index. A refractive index. A refractive index is represented by mu. Basically, it is C by V. That is, it is a ratio of light, velocity of light in air to the velocity of the light in medium. Listen carefully, bache. Suppose the light enter from this medium to this medium. I call this medium as a 1 and this medium as 2. So I will write the light enter from 1 to 2 and will pronounce as a refractive index of 2 with respect to 1. फिर से सुनना बच्चे. If the light enters, suppose there is air and there is a water, and if I suppose light move from water to air, so I will write water to air, but I will pronounce as refractive index of air with respect to water. बोलूँगा उल्टा बच्चे, पर होगा ये. थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं इसके बारे में. So one thing is clear, refractive index is the ratio of speed of light in air to the speed of light in medium. So if once again this is light incident, I draw the normal at this light enter. I suppose its refractive index is mu1, its refractive index is mu2. This is angle of incident, angle of refraction. So if I write mu will be equal to C by V. But here light enter from 1 to 2, so I will write 1 to 2. So this is equal to what? This may be written as 1 to 2. This is equal to mu2 by mu1. This is equal to mu1. If it is not air, it is something else, then this equation may be written as C by V2 into C upon V1. Check करना बच्चे. C cancel out, so it is V1 by V2. So it means refractive index of 2 with respect to 1 is the ratio of the velocity in two mediums. Let us do one thing. Frequency से multiply, frequency से divide, because I know the frequency remain same and velocity by frequency is called wavelength. This is also called wavelength. It means I find the relation that refractive index 2 with respect to 1, that is mu2 by mu1, is also equal to the ratio of their wavelength. ये relation इससे याद रखना. And the another important thing, it is called absolute refractive index when light enters from air into medium. एयर होना चाहिए, मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. गेट इट? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. बड़ा सिंपल सा टॉपिक बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये क्या टॉपिक है? इसके अंदर बच्चे कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा टॉपिक. एक आपने मीडियम लिया, यहाँ से लाइट हिट करवाई, ये आपने रेयर मीडियम माना, इसको डेंसर माना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 लिखा बच्चे, इसका mu2. एट दिस पॉइंट यू विल ड्रॉ व्हाट? नॉर्मल. लाइट विल बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब ये जो लाइट जा रही है इसके लिए स्नेल्स लॉ लिखा. स्नेल्स आया बच्चे साइन आई, विल बी स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर. लाइट गोज फ्रॉम 1 से 2 तक, लाइट गोज फ्रॉम 1 से 2 तक. देन व्हाट यू डिड, यू पुट अप ए प्लेन मिरर. ये प्लेन मिरर है बच्चे. इन सच ए वे द लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ. लाइट वापस चलेगी,
लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ. फॉर दिस रिफ्लेक्टेड लाइट जो पीछे गई है, अगेन आई वांट टू राइट द स्नेल्स लॉ, दैट विल बी sin r divided by sin e. Light goes from 2 to 1. Equation number 2. If you multiply 1 and 2, you get which is sin I upon sin r multiply by sin r into sin I. तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये देखो बेटा कैंसल आउट हो गया. सो फ्रॉम दिस आई गेट 1/2 is equal to 2 mu 1. This is called principle of reversibility, that the if you know the refractive index 2 with respect to 1, then we can find the refractive index of 1 with respect to 2 by taking its reciprocal. Next question that comes, that is about refraction through glass slab. Refraction through glass slab. अब ये 10th में भी एक्सपेरिमेंट किया है हमने. अब इसको मैं प्रूव करके दूंगा आपको. रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट, चेक करना बच्चे. ये ग्लास स्लैब बनाई मैंने, ये ग्लास स्लैब पे एक लाइट हमने हिट करवाई. एट दिस पॉइंट आई ड्रॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंट. नाउ सिंस लाइट इज गोइंग टू एंटर, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, its refractive index is mu2. Let us suppose T is the thickness of this glass slab. So light सीधी जानी थी, but there is a refraction. Light will hit this surface. Again you draw the normal. Tends to rear, bend away from the normal. This is called angle of refraction. This is also called angle of refraction. Alternate angles, both are equal. And this is called what? This is called angle of emergent. It's clear? 1 say 2, 2 to 1. So if I apply the law here, so what will be sin I upon sin R? Light goes from 1 to 2. Similarly at this point, sin R upon sin E, light goes from 2 to 1. And if you multiply these equations, sin R will be cancelled out. You left with sin E upon sin E is equal to 1 to 2 multiplied by 2 to 1. This is equal to what? This is equal to 1. क्योंकि अभी तो प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी में प्रूव किया बच्चे, इधर मल्टीप्लाई किया. सो आई गेट साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, और आई कैन से आई इज इक्वल टू. So I prove, you have proved in experiment also कि ये दोनों क्या होते हैं बच्चे, सेम होते हैं. एक यहाँ पे एक और चीज़ बच्चे we have to find, that is called lateral shift. lateral shift फिर से देखना होगा, एक और चीज़ फाइंड करनी मेरे को यहाँ से, that is called lateral shift. lateral shift कैसे फाइंड करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है. फिर से देखना डायग्राम. ये ग्लास स्लैब थी, ये पीछे से लाइट आई थी, यहाँ पे आपने बच्चे नॉर्मल ड्रॉ किया. आपने क्या कि अगर ये अंदर को एंटर करी, फिर आपसे एक नॉर्मल ड्रॉ किया और यहाँ से बाहर की तरफ चली गई. ये एंगल आई है और ये भी एंगल आई, जिसको हमने प्रूव किया. अभी चेक करना बच्चे, अगर यहाँ पे ये ना होता ग्लास स्लैब तो लाइट ने सीधे जाना था. बट ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब देयर इज ए डेविएशन इन द पाथ ऑफ द लाइट. दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the incident and the emergent light is called, so lateral shift is the minimum distance between किसके किसके बीच में, incident and emergent. Okay, so let us find. इसका बच्चे थिकनेस T मान लो बेटा. अच्छा, अब मैथ्स आपको आता है बड़ी अच्छी तरह. ये एंगल कितना था,
आर था ये, क्योंकि ये आर, ठीक है, ये आर था। और ये एंगल कितना होगा, ये थोड़ा सा डायग्राम में बड़ा करके बनाऊँ तो ये लाइट यहाँ पे आई थी, ये आपने यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया था, ये एंगल आई था। आप कहते कोई चेंज नहीं होता तो लाइट सीधी जाएगी, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट आई आ जाएगा। बट लाइट तो बेंड की थी, कितने एंगल से, आर से, तो ये एंगल कितना बचेगा, दिस विल बी आई माइनस आर। ठीक, अब इसको नाम दो ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ट्राइंगल ए, ये परपेंडिकुलर है बेटा यहाँ पे। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं साइन आई माइनस आर फाइंड करता हूँ वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सी डी अपॉन ए सी। सो सी डी इज माई लेटरल शिफ्ट, इट इज इक्वल टू ए सी साइन आई माइनस आर। नाउ इन ट्राइंगल, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, यहाँ से कॉस आर फाइंड करो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है मेरी थिकनेस, हाइपोटेन्यूज है मेरा ए सी, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आएगी बच्चे, दैट विल बी टी अपॉन कॉस आर। पुट करो तो आपके इसमें पुट इन 1, तो जो सी डी आएगा दैट विल बी ए सी, ए सी था मेरा टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय, दिस इज कॉल्ड लेटरल, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, इसको बोलते हैं बच्चे लेटरल शिफ्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्लियर? सो दिस इज फॉर्मूला, दिस इज वाज टॉपिक नंबर 5th। नाउ आई कम टू माय टॉपिक नंबर 6। Topic number 6 is to find the relation between real depth oblique apparent depth. कि जो हमें नज़र आ रहा है और जो है उनमें क्या डिफरेंस है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। चलो बेटा, एक कंटेनर लिया मैंने, इस कंटेनर पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, दिस कंटेनर इज फिल्ड विद सम लिक्विड सपोज, सो सारा फिल किया हुआ इसके अंदर। यू नो दैट इफ लाइट गोज नॉर्मली देन स्नेल्स लॉ फेल, देयर विल बी नो चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, बट इफ लाइट एंटर obliquely, if light enter obliquely, then at this point you will draw the angle of incidence. Now light goes water to air, so denser to rare, तो यहाँ से लाइट गई पेंट करके, यहाँ से हम देख रहे हैं लाइट को, तो हमें लगेगा ये जो लाइट यहाँ से नहीं आ रही थी, वी सपोज इट कम फ्रॉम दिस साइड। फिर से देखना बच्चे, सो ये कंटेनर था एक मेरा, थोड़ा सा बड़ा बना दूँ इसको मैं ताकि डिस्टिंग्विश कर सकें इसको। ये कंटेनर है मेरा, दिस इज माय कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर मेरी उसकी डेप्थ देखनी है, रियल डेप्थ। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने। अब ये लाइट अगर इस साइड जाएगी तो ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट, डेंसर टू रेयर जा रही है तो बेंड अवे, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। तो जब हमने एक्सटेंड किया तो हमें नज़र आया कि यहाँ से ही लाइट आ रही, इस पॉइंट से आ रही है। ये जो बच्चे डिस्टेंस होता है ना, इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। और ये जो नीचे तक डिस्टेंस होता है इसको कौन सी डेप्थ बोलते हैं, ये मेरी रियल डेप्थ है। नाउ आई हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू डेप्थ। वेरी इजी, चेक करना बच्चे, ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, ठीक है जी। और ये अगर एंगल मैं पूछूँ आपसे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर हो जाएगा, और ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम आर आ गए। इसको नाम दिया आपने ए वी, इसको नाम दिया आपने बच्चे पी, इसको नाम दिया आपने सी, इसको नाम दो आप टी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल लूँगा ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में आई विल फाइंड साइन आई। अच्छा जी, वो होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आ गया बी सी,
हाइपोटेन्यूज आ गया AC, इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC आई विल फाइंड साइन आर. चलो जी साइन आर फाइंड कर देते हैं. देन इट इज परपेंडिकुलर इज BC, हाइपोटेन्यूज CD. लेट अस डिवाइड दीज टू. सो साइन I अपॉन साइन R, BC cancel out, so CD upon AC. Now you can see if you apply the Snell's law. So this is Snell's law. So it is what the light goes from water to air, CD upon AC. ध्यान देना बच्चे. If this C lies close to B, if C lies close to B, then तो क्या होगा? Then instead of writing C I will write B. Then this equation becomes C की जगह B लिख दूंगा. मतलब पहले C था, अब ये बनेगा BD अपॉन AB. बट अब ये BD अपॉन AD तो लिख दिया. अब पंगा ये है कि अब जब तो देखने वाले के लिए तो लाइट एयर टू किधर जा रही है? वाटर. नीचे है वाटर टू एयर, पर इसको तो हम वाटर से एयर जा रही ना, एयर टू वाटर जा रही है ना. तो आई कैन चेंज दिस, कर सकते हैं, प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी. सो नाउ लाइट इज गोइंग एयर टू वाटर, सो इट शुड बी गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर. दिस इज इक्वल टू BD, एंड इफ यू लुक एट द डायग्राम, BD is called what? BD is called apparent depth, and what is real depth? That is equal to AB. AB is the real depth. So this is my important formula, that mu is equal to a real depth divided by apparent depth. It means due to the refraction of light there is a shifting in the position of the object lies at the bottom. वो शिफ्ट कितना हुआ ये देखो, ये A पे था बेटा, शिफ्ट होके कहाँ चला गया? वो D पे. तो शिफ्टिंग कितनी की हुई है उसकी? 80 की. वो अगर मेरे को AD फाइंड करना हो, व्हाट विल बी AD देन? इधर ही कर देते हैं साइड पे फाइंड. अब मैं पीछे कहाँ जाऊँगा, यहाँ पे कर देते हैं फाइंड. चेक करना बच्चे, AD फाइंड करना है मेरे को, AD. सो AD में भी रिटर्न एज AD नहीं, शिफ्टिंग यहाँ गई है, हाँ जी ये गई है, तो इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ. सो AD विल बी रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ. देखो ना, ये रियल डेप्थ थी, ये एपरेंट थी, माइनस कर दिया. और एपरेंट डेप्थ का मेरे को फॉर्मूला ये रहा, रियल डेप्थ माइनस रियल डेप्थ बटा म्यू. रियल डेप्थ कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाय म्यू. दिस इज माई शिफ्टिंग आ जाएगी, इतना शिफ्ट कर रहे हैं. क्लियर है? So this is very important formula, and I will use a number of numericals. I take one example. तो फिर से कर लेते हैं कि क्या फार्मूला क्या था अपना. फार्मूला था बच्चे कि शिफ्ट कितना हुआ था नीचे से ऑब्जेक्ट, दैट वाज उसकी रियल डेप्थ ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय म्यू. अब इसका एक एग्जाम्पल क्या है मेरे पास. एक एग्जाम्पल है कि एक कंटेनर में मैंने कुछ सेंटीमीटर, लेट अस सपोज 10 सेंटीमीटर तक वाटर फिल कर दिया. अगले 10 सेंटीमीटर तक मैंने उसके अंदर ऑयल फिल कर दिया. ऑयल, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव पड़ा है, बताओ उसकी की अपरेंट डेप्थ या कितना शिफ्ट करेगा ऊपर. So how will you, let us suppose 10 centimeter and this is 5 centimeter. So I want to find the shifting of this object. तो इसको कैसे सॉल्व करना है? बहुत इजी है बच्चे, ये लिखा फॉर्मूला. अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर के लिए जो टोटल शिफ्ट होगी वो 10 सेंटीमीटर ब्रैकेट 1 माइनस म्यू वाटर का, प्लस इसके लिए देखूँगा इसका कितना है 5, 1 माइनस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. आई विल सॉल्व, आई गेट द आंसर. I will get the answer. Another question, इसी का एक और क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में मैंने देखा है. ये SC वर्मा का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा बच्चे. उसमें उसने ऐसे 3 स्लैब्स लगा दी.
इनका उसने दे दिया कि 0.5 सेंटीमीटर थिकनेस है, इसकी 0.4 सेंटीमीटर थिकनेस है, इसकी 0.3 सेंटीमीटर थिकनेस है। इनके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है बेटा। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट P लिखा है और यहाँ से एक बंदा ऑब्लिकली देख रहा है उसको। तो बताओ इसकी पोजीशन कहाँ नज़र आएगी। और इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, इसका गिवन है 1.4 और इसका गिवन है 1.3। तो मैंने यहाँ से इसकी शिफ्टिंग देखनी है, नो प्रॉब्लम। कैसे देखोगे, वही फॉर्मूला अपना कैंसर। अगर इसकी बात करूँगा बच्चे तो मेरी थिकनेस कितनी है इसकी 0.3, 1 माइनस 1.3 प्लस इसकी बात करूँगा कितनी थिकनेस है 0.4, 1.4। नेक्स्ट वाले की बात करूँगा 0.4, 1 माइनस 1.5। सभी को ऐड कर दो, मेरी थिकनेस निकल जाएगी, मेरी थिकनेस निकल जाएगी। और चलते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन उसमें एक और भी था बेटा, जिसके अंदर क्या है कि एक माइक्रोस्कोप को हमने एक पॉइंट P पे फिक्स कर लिया, फिर हमने बीच में एक ग्लास स्लैब रख दी और जिसकी थिकनेस आई सपोज T थी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था। नेचुरली जब इस P के ऊपर मैं ग्लास स्लैब रखूँगा तो इसकी पोजीशन चेंज कर गई। तो बताओ कितने डिस्टेंस से इस माइक्रोस्कोप को पीछे मूव करना पड़ेगा सो दैट इट इज़ अगेन प्योरली विजिबल। एट व्हाट डिस्टेंस दिस माइक्रोस्कोप शुड मूव सो दैट इट इज़ प्योर विजिबल। सो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। ट्राई करो बच्चे, नहीं होगा देन यू कैन आस्क मी, आई विल सॉल्व। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। If I go further, that is topic 7th, that is again most important, that is called total internal reflection. Total internal reflection, that is also important. TIR बोलते हैं बच्चे। ये इम्पोर्टेंट कैसे, ध्यान से देखना बेटा। ये मैंने एक मीडियम लिया और इससे मैंने डेंसर बोला, इधर बच्चे बोला मैंने लिया। यहाँ पे एक रखा पॉइंट सोर्स जो लाइट देगा। इस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल ड्रॉप किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यू नो दैट वो स्नेल्स लॉ बोलता है साइन आई बाय साइन आर शुड बी कांस्टेंट, दैट शुड बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई इंक्रीज फर्दर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने इसको और इंक्रीज कर दिया। जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होगा ये भी इंक्रीज़ होगा। एक पॉइंट आएगा जिस पे चेक करना बच्चे, इंक्रीज़ करते 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 ये नीचे की तरफ आ रहा है, एक पॉइंट पे ये सरफेस भी ग्रेज करेगा सो दैट दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, क्योंकि वो यहाँ से चल रहा था, ऐसे चलते 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 नीचे आ रहा था। दिस एंगल एट विच हैपन इज कॉल्ड IC। IC स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल एंगल। फर्दर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, अब क्योंकि आप इस साइड इसको बढ़ा रहे हो और फर्दर इंक्रीज कर दो बच्चे, और फर्दर इंक्रीज कर दो। तो जब आप फर्दर इंक्रीज कर दोगे तो लाइट तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे अब और कितने जाएगी, नीचे आ जाएगी। इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड दिस ओनली हैपन व्हेन I इज ग्रेटर देन। तो मेरी कंडीशंस क्या होगी TIR की, मेरी कंडीशंस क्या होगी। पहली कंडीशन होगी ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन, बोलो कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में होना चाहिए। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या होगी कि मेरे जो इंसिडेंट एंगल है, हाँ जी बोलो, इंसिडेंट एंगल है जो मेरा, दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इन दैट केस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, अदरवाइज देयर विल बी नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे बेटा अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओ, चेक करना बच्चे, इस पॉइंट पे मेरे को स्नेल्स लॉ लगाना है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, व्हाट विल बी दैट साइन
I see upon sin 90 light goes from denser to rare. अब पानी में तो कोई होता नहीं, हम तो हमेशा बाहर ही होते हैं, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ रेयर टू, so this is rare to denser. So this is my relation of refracting index with the critical angle. Very important that I will use in number of numericals. So this is for today. Next we will discuss. Thank you.